اچھا، موضوع یا مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ایک دو پہلوؤں پر ہم بہت زیادہ بات کر لیتے ہیں اور باقی پہلوؤں کو ہم بالکل نظر انداز ہی کر دیتے ہیں، ان کو لفٹ ہی نہیں کراتے، یا پتہ نہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتے یا ہم سمجھنے کی جان بوجھ کر کوشش نہیں کرتے۔ جو مسئلہ ہم نے خیبر پختونخوا میں دیکھا تھا وہی اب پنجاب میں بھی ہوا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ ہوا ہے، مگر کوئی اس پر بات نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہا۔ یہ جو آخری سپیل تھا، مبینہ طور پر آخری سپیل تھا مونسون کا، اللہ کرے کہ یہ آخری ہو، جو اتوار کے روز سے شروع ہوا تھا، اس سے قبل ہمیں بتا رہے تھے پی ڈی ایم میں پنجاب کے جو کاٹھیا صاحب ہیں ڈی جی، وہ بار بار بتا رہے تھے کہ مبارک ہو مبارک ہو، بس ہر دریا اب پستی کی جانب گامزن ہے اور اب کسی دریا میں مزید پانی آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، انڈیا کی جانب سے بھی سب کلیئر ہے اور ہمیں کوئی انفارمیشن بھی نہیں ملی۔ اچھا، جس وقت انڈس واٹر ٹریٹی ہوا تھا نا، وہ 50 کی دائی تھی۔ کاٹھیا صاحب اور مریم نواز حکومت صاحبہ سے گزارش ہے کہ یہ 2025 ہے۔ آج وہ آپ نے جو طریقے طے کیے تھے کہ جی وہ انڈیا ہمیں تو نظر نہیں نہ آئے گا تو انڈیا والے ہمیں ریڈیو پہ بتا دیں، فون کر کے بتا دیں، تار دے کے بتا دیں، وہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں۔ آج آپ کے پاس سیٹلائٹ امیجری ہوتی ہے، آج آپ نے جنگ لڑی ہے ہندوستان سے اور اس کے جو میزائلوں کا ڈپو تھا یا جہاں اس کا میزائل ڈیفنس سسٹم نصب ہوا تھا، وہاں پر آپ نے ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے ہیں، ان کے ایئر بیسز کو ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے ہیں۔ انڈیا نے پاکستان کے اندر جہاں پر کبھی کسی زمانے میں حافظ سعید صاحب کا کوئی مدرسہ ہوتا تھا یا کسی زمانے میں کوئی مسعود اظہر صاحب کا مدرسہ ہوتا تھا، چاہے اب وہاں گھر تھے جو بھی تھے، ان کو وہ جگہیں ٹھیک ٹھیک پتہ تھی اور انہوں نے ٹھیک ٹھیک وہاں نشانے لگا لیے۔ تو دنیا بہت آگے چلی گئی ہے۔ ہم نے دیکھا ایران جیسے ملک نے اسرائیل جیسے دنیا کے جدید ترین اور دفاعی طور پر طاقتور ترین ملک کے فوجی اہداف پر اس جنگ کے دوران جو ایران اسرائیل کے مابین ہوئی، ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے۔ تو آپ نے جو ہمیں بتایا تھا کہ مبارک ہو یہ جو اتوار کو مونسون کا مبینہ طور پر آخری سپیل آیا ہے، بقول آپ لوگوں کے 10واں اور آخری سپیل تھا، اس سپیل سے پہلے آپ ہمیں بتا رہے تھے مبارک ہو تمام دریا پستی کی جانب گامزن ہے اور اب کسی دریا میں کسی طرف سے مزید پانی آنے کا امکان نہیں ہے، یعنی جو چناب، راوی اور ستلج جو تینوں ان دنوں بکھرے ہوئے ہیں پنجاب میں، ان میں اب مزید پانی آنے کا امکان نہیں ہے اور اب یہ سارا پانی سندھ میں جائے گا، وہاں پہ سیلابی صورتحال پیدا کرے گا اور پھر بحیرہ عرب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ لیکن ہوا کیا، مزید پانی آنا شروع ہو گیا، ہر طرف مزید پانی آنا شروع ہو گیا۔ چناب نے جھنگ سے لے کے ملتان تک ایک مرتبہ پھر سب کچھ ڈبو کر رکھ دیا، ستلج نے پورا بہاول نگر، پورا قصور، پورا پاک پتن، عارف والا، بورے والا، ایک مرتبہ پھر سب کچھ ڈبو کر رکھ دیا۔ اب ڈی جی پی ڈی ایم اے صاحب ہمیں منہ معصوم سا بنا کر بتا دیتے ہیں مزید پانی آ گیا، اور اب آپ کہہ دیتے ہیں انڈیا نے آبی دہشت گردی کر دی۔ انڈیا تو آبی دہشت گردی کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اب پھر کیا کریں؟ اب ہم نے اپنے بندوبست نہیں کرنا بچ بچاؤ کا؟ جب خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا تھا، دیکھیں یہ بلاول بھٹو صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں، چاہے وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہی کھیل رہے ہیں، کہ سیلاب کی صورتحال میں ہمیں یہ پی ٹی آئی، نون لیگ، یہ والی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جب خیبر پختونخوا میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو دریائے سوات میں ارلی وارننگ سسٹم تھا وہ لگا ہی نہیں ہوا، کوئی کہتا تھا نہیں وہ 2011 12 13 میں لگ گیا تھا، کوئی کہتا تھا نہیں وہ لگ ضرور گیا تھا لیکن خراب ہو گیا تھا، کوئی کہتا تھا نہیں ہمارے پاس کمپیوٹرائز سسٹم ہے، اور تنقید کرنے والے کہتے تھے پھر ہے کتنے؟ تو جو مسئلہ خیبر پختونخوا میں نظر آیا تھا وہاں پر تو پاکستان کے اندر سے پانی آنا تھا، گلگت سے دریا آ رہے تھے اور ندی نالے آ رہے تھے خیبر پختونخوا کے اندر، وہ بھی گنڈاپور حکومت کی نااہلی کی وجہ سے کنٹرول نہیں ہو سکا، انہیں پہلے سے پتہ نہیں چل سکا، وہ لوگوں کو ارلی وارننگ نہیں دے سکے فلڈ کی، اور اتنی جانیں چلی گئیں اور اتنا اور بھی نقصان ہوا۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں یہاں انڈیا سے پانی آنا ہے، تو یہاں تو اب آپ کا دشمن بھی ہے اور اس کے پاس ڈیم بھی ہیں، وہ دہشت گردی بھی کر سکتا ہے، آبی دہشت گردی، وہ ڈیموں کے دروازے کھول کے سادہ فلڈ کے ساتھ مزید پانی، اضافی پانی بھی بھیج سکتا ہے۔ آپ کو یہاں تو زیادہ چوکنا ہونے کی، زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس تو وارننگ سسٹم بھی ہیں بقول آپ کے، سب کچھ ہے، لیکن ہوا کیا، آپ کے ان سسٹمز کا کیا کریں جب آپ کے ڈی جی پی ڈی ایم میں ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی پانی اور کوئی اب مزید سارے دریا پستی کی جانب گامزن ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ پھر ایک نیا ریلا، پھر ایک نیا ریلا، پھر ایک نیا ریلا، سب کچھ ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اور اب جب کاٹھیا صاحب بتا رہے تھے کہ اب کچھ نہیں ہونا، سب اوکے ہو گیا، تو پرسوں انڈیا نے ہمیں چٹھی لکھ ڈالی، اتوار والے دن لکھ ڈالی، پیر والے دن بھی لکھ ڈالی،
दो चिट्ठियां लगातार लिख के बार बार बता दिया कि भाई मज़ीद पानी सतलुज में आ रहा है, मज़ीद पानी सतलुज में आ रहा है। तो जो सिस्टम्स हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों के बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। मरीम नवाज साहिबा को इस मामले पे फ़ौरन तवज्जो देनी चाहिए, ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब को, जो कि अपने वल्लों वज़ीर आज़म हैं। देखिए अब हैं तो सही ना आप शहबाज शरीफ साहब, चाहे जैसे भी हैं, आपको इस सिस्टम पे तवज्जो देनी चाहिए कि ये हमारे पास अर्ली वार्निंग्स के सिस्टम क्यों नहीं है। जो कुछ मुल्तान में हुआ है लोगों के साथ, जो चनाब और सतलुज और रावी कर रहे हैं, ये बहुत बुरा है। चूँकि ये गरीबों का माल है, गरीबों की जानें हैं, तो वो चली भी जाएं तो आप लोगों को ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता, इसलिए आप लोग को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन बराए मेहरबानी इंसान को इंसान समझना शुरू कर दें। चलें वोटर ही समझना शुरू कर दें यार, अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी ही कंसिडर कर लें और यही समझ लें कि आप अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आएंगे। मतलब अभी तो नहीं आए, आगे तो कभी आना है ना। तो इसलिए चीज़ों को ज़रा रैशनली देखें, आपकी बड़ी मेहरबानी। और अगर आप लोग नहीं देखने पर तैयार रैशनली, तो फिर सेलेक्टर से गुजारिश है कि फिर वो खुद ही देख लें। अगर एनडीएमए के चेयरमैन वो वर्दी वाले लगा सकते हैं, तो फिर ये जो एनडीएमए के देखने के काम हैं, इनको भी ज़रा कंट्रोल करवा लें, आपकी मेहरबानी होगी। ये कोई ऐसा सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, अपना ज़ाती इंडिया की इतलात पर मबनी नहीं। हमें इंडिया की इतला का मोहताज नहीं होना चाहिए। हमें डायरेक्टली पहले से पता लगना चाहिए कि हरीके में, फ़िरोज़पुर में कितना पानी पहुंच गया, बल्कि हरीके और फ़िरोज़पुर की जानिब कितना पानी आ रहा है, ये भी हमें पहले से पता होना चाहिए, ताकि हम इससे पहले कि पानी हरीके फ़िरोज़पुर पहुंचे, वो तो फिर आखिरी किनारा होता है जिससे फिर वो अचानक पंजाब में आ जाता है और फिर सब कुछ डुबो के रख देता है। यानी वो हरीके से या फ़िरोज़पुर से तो कसूर और लाहौर पानी को पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं ना। तो इसलिए इससे भी बहुत पहले जब इंडिया हमें इतला देता है कि जनाब हरीके की डाउन स्ट्रीम पर या फ़िरोज़पुर की डाउन स्ट्रीम पर इतना पानी आ गया है, तो आपको उससे पहले जब पानी पीछे से निकल रहा होता है, मकबूजा कश्मीर से इंडियन पंजाब में आ रहा होता है, आपको तो उसी वक्त इसका खबर हो जानी चाहिए, ताकि हम अपने लोगों को और उनके मवेशियों को, जो उनकी मेहनत होती है, जो उनकी कमाई होती है, जिन पर उनकी गुजर बसर का इन्हसार होता है, कोई फौरी तौर पे किसी जगह मूव कर सकें। चले फसल का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंसानों और जानवरों की जान तो बच सकती है। मवेशी भी बहुत कीमती होते हैं और इंसान बहरहाल जिन लोगों के घरों से जाते हैं उनके लिए तो बहुत कीमती होते हैं ना। और फिर जो हड़बौंग मचती है, जो रेस्क्यू की सर्विसेज पर और जो दूसरी सर्विसेज पर प्रेशर पड़ता है, उस सब को भी कंट्रोल करना ज़रा आसान हो सकता है अगर आप कुछ अर्ली वार्निंग का सिस्टम बना लेते। ये मैकेनिज़्म जो इस वक्त आपके बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं कि आप हमें बता रहे हैं कि जनाब अब कुछ नहीं है, मुबारक हो, और इंडियन हाई कमीशन आपको अगले दिन खत लिख के बताता है कि मनूसो पानी मजीद हम छोड़ रहे हैं, होश कर लो। इस तरह अगर आपकी डिपेंडेंसी होगी इंडिया के इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, तो फिर तो हो गया काम। फिर तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान में लोग डूबते रहेंगे। अपने वार्निंग सिस्टम्स को, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हों चाहे पंजाब के हों, उनको हमें एफिशिएंट बनाने की फ़ौरन ज़रूरत है। हाँ, मुराद अली शाह साहब बहुत ओवर कॉन्फिडेंट चल रहे हैं हस्बे रिवायत। वैसे तो पीपल्स पार्टी के पास 2 सूबों की हुकूमत है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा बलूचिस्तान की तरफ सैलाब का ज़ोर नहीं है। अब बारिशें वहाँ भी शुरू हो रही हैं, खुदा वहाँ भी रहम करे। लेकिन मुराद अली शाह साहब तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। वो तो कहते हैं कच्चे के लोग ही बहुत बड़े इंजीनियर है। वो कहते हैं मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री को तो आप बाढ़ में झोंके ना, कच्चे के लोग बहुत बड़े इंजीनियर है। जब जब जहाँ जहाँ जितना जितना पानी आएगा उन्हें पहले ही पता है, वो खुद ही मूव कर जाएंगे। तो हम तो चिल बैठे हैं, हमने अपने एक बना दिए हैं, उनको रिलीफ सेंटर बना के दे दिए हैं, जैसे कि मरियम हुकूमत ने बना के दिए हैं, जहाँ वबाई अमराज फूट रहे हैं। और बकौल अज़मा बुखारी साहिबा के अपने 50,000 से ज़ायद लोग डेंगू, मलेरिया और डायरिया और न जाने किस किस बीमारी में मुब्तला उन फ्लड रिलीफ कैंपों में हो भी गए हैं, बकौल अज़मा बुखारी साहिबा के अपने। और जो ये सरकारी आदादोशुमार हैं उनकी निस्बत जो असल आदादोशुमार होते हैं वो तो आप जानते ही हैं, गैस्ट्रो फैल रही है, सब कुछ उन फ्लड रिलीफ कैंप्स में पंजाब में तो फैल रहा है। और अब ये सब कुछ सिंध में होने जा रहा है। और मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं हमने रिलीफ कैंप बना दिए हैं, कच्चे के लोगों को पता है कब कितने दिनों में उनके घर में पानी आएगा, लिहाजा वो खुद ही आराम आराम से मूव कर रहे हैं, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पिछली दफ़ा हमने देखा था 2022 के फ्लड में 1700 जानों से पाकिस्तान ने हाथ धोए थे सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक। और इस वक्त एनडीएमए बता रहा है कि 910 लोग अपनी ज़िंदगियां हार चुके हैं इस 4 महीने के मानसून में। अब अज़मा बुखारी साहिबा लड़ ज़रूर रही हैं मानसून से कि पता नहीं मनूस 4 महीने हो गए हैं अभी जा ही नहीं रहा, ये ठीक है, लेकिन अब आप मानसून से लड़ सकती हैं तो लड़ लें, लेकिन वो आपकी बात तो मानेगा नहीं। अब वो 4 महीने में नहीं जाता या 6 महीने में नहीं जाता, इस पर तो हमारा जोर नहीं चलता बुखारी साहिबा। हाँ, आप मैनेजमेंट करके बर वक्त तदबीर करके बर वक्त लोगों को सेफ प्लेसेस की तरफ मूव करके इस आफत को कम कर सकते थे।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तो बुरी तरह नाकाम हो चुके। सिंध की आजमाइश जारी है। अल्लाह ताला मुराद अली शाह साहब को और उनकी टीम को हिम्मत दे, लेकिन इस वक्त तक जो उनकी पॉलिसी और जो मैनेजमेंट और जो ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, उससे यही लग रहा है कि वो सिर्फ वो जो बांसुरी बजाने की सिवा तरह वो रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था वाली सूरत हाल में आराम से बैठे हैं कि कच्चे के लोग खुद ही चले जाएंगे, हम तो चिल करके बैठे हैं, हमें कोई मसला नहीं है। और ये कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इतना नुकसान हुआ है और उनके दरिया तो नीचे बहते हैं, हमारा दरिया तो वैसे भी ऊपर बहता है, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये मैनेजमेंट का एक भौंडा तरीन तरीका है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा दरिया ऊपर बहता है। ये तो सबको पता है कि सिंध बिल्कुल फ्लैट ज़मीन है, ये भी सबको पता है कि सिंध में दरिया ऊपर बहता है और ज़मीन नीचे है, ये ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है। ये भी सबको पता है कि पंजाब की तरह सिंधियों के पास बंद तोड़ने की ऑप्शन नहीं है, लैंडस्केप ख़तरनाक है, दरिया ज़्यादा ख़तरनाक है, मट्टी भी दरिया में ज़्यादा आ गई है, दरिया का लेवल भी दिन ब दिन ऊंचा होता चला जा रहा है। ये सारी बातें सबको पता हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा होश की ज़रूरत थी, मगर वो बदकिस्मती से नज़र नहीं आ रही। और हर साल की तरह हमें सिर्फ तीनों हुकूमतें यही बता रही हैं कि अब की बार देखना, अब अगली बार देखना, बस ये जो होना था वो हो गया, अब अगली बार हम सारी तजावज़ात साफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तजावज़ात तो आप साफ़ कर देंगे, वो तो हमें पता ही है कितने आप साफ़ कर रहे हैं 75 साल से, लेकिन ये जो आपके वार्निंग सिस्टम्स हैं, चाहे वो इंडिया से इंफॉर्मेशन का मसला हो या चाहे वो गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की दोनों इकाइयों का आपस का वार्निंग सिस्टम का मसला हो, या इवन खैबर पख्तूनख्वा के एक इलाके से दूसरे इलाके तक के लोगों को कन्वे करने का मसला हो, किसी भी शक्ल में आप मुकम्मल तौर पे आवाम को बर वक्त मुतला करने से और बर वक्त इवैक्यूएट करने में नाकाम रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित तीनों का इकाइयों के एडमिनिस्ट्रेटर्स। और अब सिंध के लोगों से गुजारिश है कि आप खुद ही होश कर लें और ख़ुद ही शिफ्ट हो जाएं। मुराद अली शाह साहब ने तो कह दिया है, कच्चे के लोग बड़े अक्लमंद हैं, वो खुद ही सेफ़ मकामात पर चले जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला।